Hello, friends. A very warm welcome to all of you. And in this series, again, we are going to pick up some important themes. And starting with question number one, where we have to understand what exactly the question is demanding, and the idea that such questions are again going to come up in the mains examination. So, first question says, explain briefly Mahatma Gandhi's views on religion and its relation to politics. बहुत ही appropriate point है. आज भी मेंस में आता है, indirectly, directly, ऐसे में भी आ सकता है. Were these views shared by Shri Jawaharlal Nehru? Okay, fine. Let's see. So Mahatma Gandhi ji viewed religion and politics two different subjects. He viewed social reforms not imperative for political freedom. Agreed, they impacted each other indirectly also. Yes, because basically we were looking for political freedom first. So religion and politics का fulcrum लेके आए वो. Religion should not divide the masses. It was visible in his stand against separate electorates. He didn't oppose the Varna system either, but called for reforms in it. This is a good point. On the other hand, Pandit Nehru didn't subscribe to Gandhiji's view on this. I agree. Coming back to the question again, let's come back again. How we can further frame it again. Get back to the same question again. Explain Mahatma Gandhi's views on religion. So, in this answer, we must bring the idea how he went on to use Khilafat. He went on to support, lead, and inspire Khilafat movement. He was the first one to bring religion into politics in one that sense because Khilafat was a religious issue. So he believed in Hindu Muslim unity. He believed that religion can be part of politics when you are truthful, when you are honest, when you know those Gandhian values. So whereas Jawaharlal Nehru believed politics to be non-religious, he believed secular politics. That is why Gandhiji is actually using Hindu imagery, Hindu ideas, whereas Nehru is not believing in that. Nehru is a modern thinker. So from that perspective, we have to bring it. But we can always bring our own understanding by saying that Gandhiji's views on religion is that religion for him is not a formal religion also. It is values of life which are to be practiced. जैसे सर्वोदय है. अब सर्वोदय या फिर प्रो पुअर या फिर saying that if you are going to eye for an eye will make the whole world blind and there is enough for everyone's need but not greed, ये सारी चीज भी वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते थे. लेकिन जो आम हिंदू है, आम भारतीय है, जब गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में आने का और मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी जो रिजिड पॉलिटिक्स थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिटिक्स है, जो मुस्लिम लीग की जो एंटी नेशनल पॉलिटिक्स है, वो खत्म नहीं हुई. तो उसके खिलाफ जब राष्ट्रवादी हिंदू खड़ा हुआ तो गांधी जी ने राष्ट्रवादी हिंदू को भी, या कह लीजिए जैसे वीर सावरकर थे या और जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज है उनको भी उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया. तो गांधी जी की अपनी एक थिंकिंग थी. बट रिलीजन इन रिलेशन टू पॉलिटिक्स उनका यही मानना था कि यूज कर सकते हो आप. और ये जो आपने आइडियाज बताए ठीक बताए, लेकिन जो मैंने आपको व्यू बताया वो यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ रहा है, वो व्यू मिसिंग है. चलिए नेक्स्ट. What are the main factors which led to eventually, keyword यहाँ पर है eventually to the partition of it. So culmination of the British policy of divide and rule, which got ingrained in the form of communism. बिल्कुल सही बात है. इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है लेकिन टू द पॉइंट है. और भी ज्यादा हो सकता था लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. So partition was trade-off that was accepted by INC to get complete independence from the British Raj because of unfavorable circumstances including riots on the streets. हमें बताना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करने पर कांग्रेस मजबूर क्यों हुई. पहली बात, पहले स्टेटमेंट में आना चाहिए था. The unrelenting demand for two nation theory as a leader of Muslim League, which was fermented by the British. हमें साथ में बोलना पड़ेगा ना, ब्रिटिश डिमांड तो मांगी, अनरिलेंटिंग डिमांड तो है, लेकिन ब्रिटिश ने उसको किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट किया, वरना वो डिमांड डिमांड रह जाती. अगर ये भी पता होता कांग्रेस को कि जिन्ना 6 महीने में मरने वाला है, कहने को तो तब भी शायद बंटवारा ना होता. अगर ये पता होता जिन्ना नहीं बचेगा 6 महीने बाद, तब भी शायद बंटवारा ना होता, ये खबर भी ना पहुंच पाई. इसलिए कांग्रेस भी, अभी आपका पॉइंट देखते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश डिजायर टू वीकन इंडिया स्ट्रक्चरली, ठीक बात है. लैक ऑफ अल्टरनेटिव टू गेट स्वराज विदाउट पार्टीशन. ये जो चौथा नंबर पॉइंट है, इसमें आपको बताना चाहिए कि कैसे 1920 से 1910 के बाद से जो हमने अपने देश को कल्चरली और जो सोशली पॉलिटिकली अवेकन किया, और जो हमने जो हमने मुहावरे यूज किए, जो हमने मेथड्स यूज किए,
हमने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भी कर दी एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। कांग्रेस ने स्वीकार क्यों किया 1916 में? व्हाई डिड इट एक्सेप्टेड दैट ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज ओके, लेटर ऑन मुस्लिम्स विल गिव अप ऑन देयर ओन? क्यों भाई? दे नेवर गिव अप। वहीं पे अगर उसको रोका जाता, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी हो जाती, लखनऊ समझौता, तो शायद बात दूसरी होती। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो ऐसा आप लिख सकते हो चौथे पॉइंट में। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लेम डालना पड़ेगा कि पार्टीशन के लिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। और आजादी दिलाने वाले सिर्फ कांग्रेस नहीं थे, आजादी दिलाने में एक्सट्रीमिस्ट का भी, लिबरल्स का भी, लेबर क्लास का भी, सबका रोल था। ये आज की बात जो है हमें देनी पड़ेगी, क्रांतिकारियों का रोल था। The economic policies followed by the British led to a transformation of India's economy into colonial economy. This disrupted the traditional structure of Indian economy. Explain how this happened. Very important point. Explain how this happened. Agriculture, rural employment, and development of our industries. ये question directly अभी भी आएगा. So the flourishing of Indian economy turned into due to oppressive revenue system, drain of wealth, mercantilism, followed by British. ठीक बात, चलो. Process began with trading company, got Diwani rights, expected British manufactured goods to Britain without any tariffs, cheaper price. ठीक बात है, चलो आगे चलो. Deindustrialization of village economy, which was based on cottage industries, raw materials were exported like cotton and finished goods were dumped, imported into India. Rural employment grew, presents partition, agriculture. For example, चंपारण सत्याग्रह, rise of जमींदार under permanent settlement led to extraction of land. तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसमें एक दो कीवर्ड्स अगर और आ जाते, जैसे कि आप लिखते कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर साथ में आप लिखते कि कैसे यू नो कोई एग्जाम्पल देते, जैसे न्यूज़पेपर लिख देते कि जैसे हिंदू पेट्रियट ने भी बताया, जो आपने लिखा है उसको बस आप इन द न्यूज़पेपर इट वाज रिटन, लीडर्स लाइक आर.सी. दत्त, या फिर आप लिखते हैं नाम साथ में दादा भाई नौरोजी का, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने बोला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड, क्योंकि बेसिकली वो एक्सप्लेन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर ब्रिटिश का जो बैंकिंग सिस्टम है, एजेंसी सिस्टम है, जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 में भी हमें काम आएगा, वहां पर भी हमें ये सब लेके आना पड़ेगा। तो ब्रिटिश का जो एजेंसी सिस्टम है, ब्रिटिश का जो बैंकिंग सिस्टम है, ब्रिटिश का जो जो सिस्टम था कि दे विल इशू यहाँ से वो, मतलब अगर मुझे मान लो मैं अंग्रेज हूँ और मुझे हिंदुस्तान आना है, तो होगा क्या, वहां से मुझे कोई एक रिसीट इशू कर देंगे, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ रिसीट दिखाई, मुझे माल मिल गया, यानी मैंने पैसा वहां का वहां भी दे दिया और यहाँ से मैंने माल भी ले लिया। यही तो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जब ब्रिटिश हूं मैं, वहां पे जो बैंक है, इंपीरियल बैंक है, उसने मुझे यहाँ का धंधा करने के लिए, मैंने वहां ऑलरेडी 50 लाख रुपए जमा कर दिया, उसने मुझे 50 लाख के वाउचर दे दिए, मैं वाउचर लेके हिंदुस्तान आ गया, मैंने हिंदुस्तान में वाउचर दिखाए, और जो मुझे लेना है मैंने ले लिया। तो यानी डबल हो गया ना, ये आपको साइकिल यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे रूरल इंडेटेडनेस, और या फिर जो बड़े बड़े दो चार कीवर्ड है वो लेके आने पड़ेंगे, तभी आंसर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाएगा। ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इट इज कमिंग अप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और इसमें आने की जरूरत है। What was Scripps mission? Why did its failure resulted in QIM? Mention briefly major developments after this movement leading to। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर में आते हैं आज की डेट में, जो पूरा एकदम स्ट्रक्चर मांगते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोज डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, बिल्कुल सही बात है। It was as a result rejected by the freedom fighters and quit India movement began in 1942. World War II came to an end. 1945 weakened British economy from within due to economic drain. As a result, cabinet mission planned establishing the Constituent Assembly to draft Constitution of India। तो इसमें आपको लेके आना चाहिए था, जैसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी आप ले आए और आईएनए ट्रेस ले, ये पहले लेके आना था, इसने मजबूर किया हमें अपनी चीज को ज्यादा बताना है। वो वीक हुए ठीक है, लेकिन हमने पाई है आजादी, हमें मिली नहीं है। हमें आजादी मिली है, आपको मतलब थोड़ा सा फील करने वाला पॉइंट है कि क्या चीज पहले लेके आनी है। तो पहले 1942 या क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भारत आजादी की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि भारत की आजादी लॉन्ग ड्रॉन मूवमेंट था और उसमें सारे एलिमेंट थे। इट वॉज पीपल्स मूवमेंट। तो इसलिए रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, आईएनए ट्रायल्स, वो एक स्पार्क था। दे वर द टू आईज, ऐसे करके लिख दो, बस हो गया। और क्विट इंडिया और क्रिप्स मिशन ऑब्वियसली आपको डोमिनेट स्टेटस ऑफर कर रहा था, और साथ में वो उसने पार्टीशन के बीच भी बोए, बिकॉज इट वाज आस्किंग प्रिंसली स्टेट्स दे मे नॉट बी फोर्स टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बस ये पॉइंट बताना है। नथिंग कैन स्टॉप गेटिंग अराउंड 55% मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो अच्छी बात है, आंसर्स डल नहीं है, आंसर्स answers are light and they are in the right direction. Point out clearly contribution of Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore in the socio-cultural development. Socio-cultural development, very important.
तो पहली बात, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका। एग्जाम में आपको ऑटोमेटिकली ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है: अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, हरिजन सेवक संघ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, स्प्रेड ऑफ मैसेज, पोएम्स, पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एस्टीम, स्किल डेवलपमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट्स, आई थिंक वंडरफुली रिटन, टॉलस्टॉय फॉर्म्स इन अफ्रीका, शांति निकेतन, अवेयरनेस क्रिएशन। आई थिंक दिस इज one of the most fast and the best written answers, and both oppose child marriage. Sati, I like the structure. This is the way one should write. This is one of the best answers written as far as examination like conditions is concerned. तो ठीक है, अच्छा लिखा गया है। गांधी जी द्वारा राम राज्य की स्थापना का स्वप्न उनकी धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी। किंतु वह धर्म, आडंबरों और धार्मिक स्कूलों माध्यम से अधिक नैतिक विचारों, मानवता, अहिंसा, व्यक्तिगत हितों के आधार पर राजनीतिक गुणों को अपनाकर राम राज्य से जोड़ते थे। सभी का हित उनका मूल केंद्र बिंदु था। तो राम राज्य वर्ड हमें भी लेके आना चाहिए था, हम लेके नहीं आए। वहां पर आना चाहिए था फर्स्ट आंसर में। तो विखंडन क्या है? क्रूरता, रूढ़िवादी विचारधारा, अस्पष्टता, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता। बुद्ध और ईसाई जैन धर्म के गुणों को अपनाया। अहिंसा, सत्य, ईश्वर, सर्वव्यापी राजनीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण। इसलिए गांधी जी ने राजनीति को अध्ययन के साथ जोड़ा। आई थिंक वंडरफुली रिटन, वेरी वेरी इनलाइटनिंग पॉइंट। मेरा धर्म, हिंदू धर्म, युवा भारत, उन्होंने सारी चीजों को जोड़ दिया। यानी गांधी जी ने, जो मैंने आपको वही पहले कहा, कि उन्होंने लास्ट में रिलीजन के जो पैरामीटर्स उनको चेंज करके उनको ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, इनसे जोड़ दिया। ये अलग किया उन्होंने। पुस्तकों, पत्रिकाओं की स्थापना की। ठीक बात है। विचारधारा पंडित जवाहरलाल, भारत के संविधान में समाज और धर्म की नीति द्वारा अपनाया गया। इन शब्दों को प्रस्तावना में 42 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया, किंतु इसकी उपस्थिति भारतीय संविधान में मूल रूप से है। चलो ठीक है, तो आपने ठीक बताया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बेसिकली सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे। उनका सेकुलरिज्म था, रिलीजन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके इंटरप्रिटेशन को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन कुछ पॉइंट हमें बहुत अच्छे मिले। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में सांप्रदायिक विभाजन के बीज बोने का काम किया। बहुत अच्छी शुरुआत की। भाषाई आधार पर, हिंदी हिंदुस्तानी के आधार पर, सरकारी दफ्तरों के आधार पर। आप यहाँ पर यू नो काऊ, जो काऊ का भी तो था ना, काऊ, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, गाय, मतलब गाय भी, काऊ भी एक बहुत, जैसे देवनागरी और हिंदुस्तानी एक मुद्दा रहा है, बहुत केस हुए हैं, बहुत राइट्स हुए इस पे। ऐसे ही काऊ के ऊपर भी है। काऊ भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। ब्रिटिश ने काऊ को हिंदू मुस्लिम विवाद का वो बताया। जैसे अभी भी है ना गौ हत्या, स्लॉटर, हम्म। तो उसको तब भी ब्रिटिश के टाइम से है। ये पॉइंट लेके आना है हमें। सो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन हिंदी मुस्लिम विभाजन में आम आम थी, इससे डालने का कार्य किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में या 6 में, 1908 में विदेशी अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को अलग से क्षेत्र प्रदान करने का स्वप्न। 1916 लखनऊ एसोसिएशन द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विभाजन। मोहम्मद अली जिन्ना का उदारवादी विचारधारा से युगल राज्य, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का विचार। तो बात वही है जो मैं अभी इंग्लिश में कह रहा था, कि ये पॉइंट हमें लेके आना है। तो आपने जो पॉइंट्स बताए ठीक है। चौधरी रहमत अली को भी आप लेके आ गए। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले उन्होंने ही किया था। मोहम्मद जिन्ना का 14 पॉइंट्स हो गए उसके। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार। तो आपने, मतलब ये एक अलग अप्रोच है जिसमें आपने पूरा नैरेटिव दे दिया। ठीक है, वो भी चलेगा। तो फर्स्ट अप्रोच में भी से भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं। बंगाल के दंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा। तो थोड़ा क्रिएटिव था पहला आंसर, ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन आई थिंक ये भी एक अच्छी अप्रोच है एग्जाम में। लेकिन कितना टाइम मिलता है और आप कैसे लिखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें बंगाल, मद्रास, बंबई जैसी प्रांतों को प्रशासनिक आधार पर बदलाव हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो अच्छी अप्रोच ली आपने, डेप्थ दिखाई है। 1813 और 1833 चार्टर एक्ट आए, व्यापारी में मोनोपोली को समाप्त कर दिया। यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ा। 19 सदी के मध्य से भारत में प्रकृति का उत्पादन का निर्यात तथा फिनिश्ड गुड्स का यहाँ से, मतलब निर्यात किया गया, जिसके कारण हस्तकरी, बुनकर, निर्माण उद्योगों का पूर्ण रूप से हनन हुआ। नील की खेती, जिसमें फसलों के उपजाए होने लायक भूमि नहीं बची। अत्यधिक कर, जमींदारी, रैयतवारी, भूमि को जोत देने वाली प्रथाओं को वसूले जाने वाला। नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा, चलो ठीक है। जनजातियों की भूमि का हस्तांतरण करना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, आई थिंक इज अ वेरी गुड एग्जांपल। भौगोलिक आधार पर अलग अलग राज्यों में भूमि लगने पर कर और प्रथा का निर्माण। उपज वाले राज्यों में नकदी फसलों को अधिक उगाई। तो लेकिन जो एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, एक्सप्लेन तो हुआ, लेकिन थोड़ा और स्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ा और कोशिश कीजिए स्ट्रेट, मतलब लेके आए। लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं, आई थिंक वेरी डीप, एंड आई थिंक वेरी वेरी, मतलब आई थिंक यू नो व्हाट यू आर राइटिंग, सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को पूर्ण रूप से ब्रिटेन का सहयोग करे। युद्ध के बाद भारत को अपनी संप्रभुता सौंप दी जाएगी। इसका नेतृत्व स्टैनफोर्ड क्रिप्स कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा इसके पुराने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी ने कहा था, पुराने दिनांक का चेक गांधी ने कहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया।
10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो आया। विभिन्न आंदोलन सभी लोगों द्वारा अपने अपने स्तरों पर आरंभ किए गए। जमींदारों के खिलाफ 1947 नौसेना विद्रोह, 1939 में हुए फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पहले या तो सीक्वेंस से लेके आइए। 1943 आजाद हिंद फौज द्वारा प्रयास रानी झांसी रेजिमेंट, 1945 यूएन की स्थापना, कैबिनेट मिशन। तो ये मतलब पॉइंट तो सारे अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि मेंस है तो यानी ऊपर वाले आंसर को एक दो फैक्ट्स यहाँ से ले लेने चाहिए, और आपको ऊपर वाले आंसर का जो एनालिटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा ले लेना चाहिए। तो दोनों की जब कॉम्बिनेशन होगा तो आई थिंक इट विल मेक अ वंडरफुल स्टोरी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, चलो चलो, आत्मनिर्भरता, जातिवाद। अब आपने जो इधर कर दिया ना, ये जो आपने जो पैराग्राफ के इधर लिखा है, एग्जाम में आंसर काट दिया जाएगा। तो इसको सीधा लेके आइए, ठीक से लिखिए, भाषा थोड़ी साफ होनी चाहिए तो नंबर आएंगे। महात्मा गांधी नैतिक मूल्य अपने जीवन में अपनाए, उन्हीं के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग तैयार किया। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि दी गई, शिक्षा पर अधिक जोर दिया। कला और साहित्य, कई कविताएं, कहानियां, उपन्यास, पत्रकार, विश्व संबंध स्थापित करने के लिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा स्ट्रक्चर हमारा ऊपर में था वो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर था। लेकिन बाकी कुछ आंसर्स के अंदर हम फर्स्ट जो हमने आंसर्स चेक किए, उन आंसर्स में कुछ पॉइंट आ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सो मानसी, व्हाट डू यू से? सो ये थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और अगर मैं ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा टू फोकस ऑन कीवर्ड्स भी कहीं कहीं। तो फिर आएगा, लेकिन जैसे हिंदी में जाता ना कई जगह बहुत अच्छे, मतलब फर्स्ट आंसर में जैसे डेप्थ थी, तो उससे आंसर हाँ। में डेप्थ आ जाएगी। इफ यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग, इफ यू हम्म। स्टार्ट ब्रिंगिंग लिटिल बिट मोर ना, उससे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सेकंड में थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, फर्स्ट में हम्म। थोड़े से आइडियाज और फैक्ट चाहिए। हम्म। फर्स्ट में हाँ। स्ट्रक्चर बन चुका है, सेकंड में स्ट्रक्चर उभर रहा है। लेकिन ये बहुत सारी बातें लिख रहे हो दिव्या, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो मतलब कि और मतलब दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। सारा आंसर दिमाग से नहीं है, उसमें आपने फैक्ट्स लेके आ गए तो आप बस बता दिया हो गया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट में दिमाग लगाया जा रहा है तो, लेकिन फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और होनी चाहिए, सेकंड में कुछ एस्पेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। हम्म। तो व्हाट डू यू से दिव्या? सर एनालिटिकल अप्रोच लेके आनी और भाषा जो है और थोड़ी सही करके लिखनी है सर उसके हाँ ऊपर। बस ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि राम राज्य की वो सोचते थे। फिर जैसे मैं बोल रहा था कि गांधी जी एक्चुअली पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो रिलीजन को रिलीजन नहीं मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि अरे तुम तो अच्छे इंसान हो, हमें तो मिलजुल के रहना है, तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, तुम मुसलमान हो तो क्या हुआ, हम एक है। दैट इज हम्म। द काइंड ऑफ पॉइंट, एंड ही वाज नॉट, ही शुड हैव रजिस्टर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर ऐसी बात थी तो अपीसमेंट हो गई ना ये तो। भाई गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले शुरुआत की तो उन्होंने सोचा कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्यों बोलूं, इससे अच्छा मैं मुसलमानों का साथ ना ले लूं। हम्म। तो साथ तो उन्होंने ये सोच के किया था, लेकिन ना मुसलमान साथ आए ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स हाथ से गए, वो भी हाथ से चला गया। जबकि आपके जो ये थे ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये सब कहते थे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स गिव अप करो। जी। जिन्ना वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट ना, यही तो प्रॉब्लम था। वो नेहरू रिपोर्ट में भी उसको स्पेशल बिलीफ चाहिए कि भाई मेरा साथ कैसे दोगे, वही वाली बात है। मतलब जी। मेरे को सिक्योर करने के लिए तुम क्या करोगे, छत से थोड़ी ना कूद जाओगे। हम्म। जिसको चैन नहीं उसको तो चैन आएगा ही नहीं, तो दैट इज द एलिमेंट। So thank you very much for being with us, and do smart work, hard work with Ansarkari in order to get success.